मैनू उधर का काम करी जाता हो ये थे जी अपना कौन भी है ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਔਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁੜ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਰੱਬਾ ਕਾਗੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਮਿਰਚ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੀ। ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ? ਐਲਆਈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਲਾਜੋ, ਫਰਾਕ, ਸੂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੂਟ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਟੀਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ, ਕੈਪ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੈਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ, ਪਲਾਜੋ, ਕੁੜਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100-150 ਕਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ 15-16 ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਆਈਸੀ ਸ਼ਰਮਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। लाइन के नीचे देखना, ये गांव ऐसे हैं जो लड़कों से बात में अपने महीने का 10-12 हजार रुपए की अर्निंग कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया है, विलेज लेवल डेवलपमेंट की हमने गेम्स वगैरह कराई हैं। एक हमने वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया था जिस गांव में लोगों की रीच नहीं है, वहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट की टीमें आई थी, 22 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी के अलावा हमने जो टीच फॉर इंडिया काम करती है, उसी के तहत हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया है।
हमने बच्चों के साथ प्राइमरी स्कूल में प्ले वे एक्टिविटी के थ्रू काम किया है। जो पिछले 2 साल में हमने विलेज के एजुकेशन वॉलंटियर रखे थे जो बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाते थे। हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट थे कवलजीत कौर, जो पहले टीच फॉर इंडिया के साथ ही काम करते थे, अभी वो सांझी शिक्षा के साथ काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमने लाइवलीहुड में गोटरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह से 7,000 की पर उनकी जो गोट के बच्चे होते हैं वो सेल हो रहे हैं। प्लस हमने पोल्ट्री फार्म का कराया है एग के लिए, और काफी उसकी भी सक्सेस स्टडी है। आप लोगों के पास टाइम कम था, वरना लेक्चर की बजाय हम आपको विजिट कराते तो ज्यादा समझ आता। तो इस टाइप के ही हमने 1-2 किसानों के साथ आपकी मैं बात कराता हूँ। आपके कोई भी सवाल हो उनसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि अक्सर बोला जाता है पंजाब का धुआं दिल्ली में आता है। उसके बारे में वो सब कुछ आपको किसान भी बताएंगे, और उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे चेंज की इधर आके वो सब कुछ आपको बताएंगे। जिस तरह ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ, ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਇਹ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 6 ਜੀ ਆ ਤੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ 12 ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। आप जिम्मेदार हुए हैं। आप 4-5 लोग जाओ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ बहुत अच्छा है। तो ये पर डे का लगभग 5,000 रुपए की अपनी इनकम कर रहे हैं, सभी एक्सपेंस निकाल के। तो ये गुड़ भी ऐसे भी बनता बाद में पहले ही निकल जाता है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रहे और प्योर चीज़ है। तो इसी तरह के हमने 3 यूनिट और लगाए हैं। वीट की हो गई, एक ऑयल की लग रही है, क्योंकि सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। क्योंकि एलपी से हमने एक साल तो कुछ पास के गांव थे, वहाँ पे सर्वे आपके वॉलंटियर्स ने किया था, उनको ट्रेनिंग किया। यहाँ भी हम जो काम कर रहे हैं, हमने हमारे पास 7 गाँव हैं, तो इनके प्राइमरी स्कूल ही है हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी। तो वहाँ पे हमने 2-2 जो वॉलंटियर दिए थे, जिनका जो सैलरी होती थी वो हमारे प्रोजेक्ट में से निकली। तो उसमें क्या था, उनकी ट्रेनिंग होती थी पहले कि बच्चों को कैसे टीच करना है। तो ये जो कंसेप्ट था प्री प्राइमरी
पे क्यों वर्क करना जरूरी था? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे दाखिल ही नहीं होने लगे। तो जैसे अभी टीचर्स की शॉर्टेज थी इसलिए हमने वॉलंटियर दे दिए। तो प्री प्राइमरी क्या था, 3 साल का बच्चा गांव में जब पुअर जो फैमिली होती है वो प्ले में नहीं लगा, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो सारा TLM था, मटेरियल था, उनके बैग का बॉटल, सभी हमने गवर्नमेंट को बोला कि आप प्रोवाइड करें। तो जब वो आने लग गया तो आपके घर में कौन कौन सी है? जैसे अगर राउंड करा रहे हैं तो राउंड क्या है? प्लेट हो सकती है, बाउल हो सकती है, रोटी हो सकती है ना? तो वो बहुत सारी वस्तुओं का चीज का नाम बताते थे। उसके बाद हम तीसरे स्टेप पे बताते थे कि ये राउंड होता है, सर्कल है। तो वो हिंदी में भी बताते थे उनको, इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी। लेकिन उनको ये नहीं बोलते थे कि सर्कल, इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। ये नहीं कहते थे। ये क्या है? सर्कल। ठीक है, तो ऐसे होता था हमारा प्रोसेस। एक आपका इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप कोविड के टाइम पे जिन ये वेज अर्नर्स की डेथ हो गई थी तो लड़कियों को आप पढ़ा रहे हो। एक वेबसाइट पे देख रहा था। नहीं प्रथम में नहीं, बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट में जाता है तो बेंचेस आ जाते हैं, एकदम स्ट्रक्चरल आ जाता है सब कुछ। यहाँ पे बैठना है, उधर से इधर उधर नहीं होना। लेकिन प्री प्राइमरी में क्या होता है, आप इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं, आप आज इसके साथ बैठे कल उसके साथ बैठ सकते हो। तो फर्स्ट में ये दिक्कत आती है। और फर्स्ट में क्या है, वो टाइम बॉन्डेज हो जाती है, इधर प्री प्राइमरी में नहीं होती। तो वहां पे थोड़ा ना बच्चे कंफ्यूज, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज होते हैं। और वहां पे उनका वो सीखने का जो थोड़ा लैक भी आता है, डाउन भी होते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि अब ये पढ़ता नहीं है। इसका आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है कि आप दिल्ली से डेलीगेशन चल के आया। तो मैंने जैसे आपको जय हिंद बोला, तो कौन कौन बोलता है जय हिंद? कौन कौन बोलते हैं जय हिंद? सबसे ज्यादा जय हिंद कौन बोलता है? तो बिल्कुल सही है, मैडम के नाम पे ताली लगा दो एक बार। मैंने 32 साल इंडियन आर्मी में नौकरी किया है, भले ही आपको देखने में ना लगता हो। और उसके बाद में मेरे सामने एक ऑप्शन था कि मैं गांव में जाके क्या करूंगा। तो मैंने गांव में आने के बाद एक ही रास्ता सबसे अच्छा चुना कि टीचर बनूंगा। तो मैं आर्मी में रहते हुए अपनी पढ़ाई जो पूरी किया और आते ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुटर बॉयज डिस्ट्रिक्ट मोगा के अंदर अभी भी मैं टीचर हूँ। अभी मेरे 2 साल बाकी हैं। तो जैसे ही मेरे अभी समा बाकी था तो मैंने सोचा कि इसके बाद क्या करूंगा। तो हम एक देश के नागरिक हैं, सबसे पहला हमारा काम है अपने देश को जोड़ के रखना। अगर हमारा तिरंगा सही सलामत है तो हम भी सारे सही सलामत हैं। तो अभी मैं ये बोलूं कि LIC हृदय जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही आलीशान और बाकमाल काम कर रहा है। तो शायद मेरे बोलने का इतना ज्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन अगर आप बोलोगे इस चीज को कि आपको ये आगे जो देखा भी आपने तो आपको कैसा लगा, तो ये ज्यादा बढ़िया बात है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी एक शख्सियत जो अभी पंजाब में आए हैं हमारे लिए सेलिब्रिटी हो, आप कुछ बोल के जाओ कि आपने जो जो कुछ देखा, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि समय कम हो गया और भी ज्यादा देखना चाहिए था। तो अगर आप बोलते हो तो अच्छी बात है। और हम लोग देश के नागरिक हैं, हमारा काम है सारी जिंदगी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। और एक बार मैं और एक जोड़ना चाहता हूँ। एक बार ना मेरे को शौक था ऐसे वीडियो डालने का, तो खेत में पूरा ही ऐसे खाली था, जैसे गेहूं काटने के बाद खेत खाली। तो मैंने एक वीडियो डाल के फेसबुक पे डाल दी, अपने फादर साहब का नाम लिख दिया, बापू मुंशा सिंह दा फार्म। तो वो तो पूरे खेत ही खेत थे ऐसे, उसमें था ही कुछ नहीं। तो किसी एक बड़े अच्छे फेसबुक फ्रेंड ने जो मेरा अननोन था उसने लिख दिया नीचे, यार खाली खाली खेत है, कोई फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने बोला कि पॉजिटिव है इसकी बात, कि इधर कुछ ना कुछ लगाना जरूरी है। तो हमने भी इनके साथ बातचीत किया, जो टीम है, तो फिर उधर खेत लगाया गया और उसके बीच में हर एक चीज जो है होती है।
तो ये आप अभी बताओ आपको कैसा लगा ये? थोड़ा बोलोगे? कोई बात नहीं, बोलो। नहीं ऐसे बोलो, कोई नहीं। क्या आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, जो आज आपने देखा ना यहाँ पर आके, आपको कैसा लगा कि जब आप इतनी दूर से आए हैं चल के, तो आप अपना फीडबैक दे के जाओ कि जो भी प्रोजेक्ट आपने देखे हैं बड़े 2-3 घंटे के अंदर अंदर, वो आपको कैसे लगे? अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे काम किया है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहले तो हम वहाँ पे आपकी कम्युनिटी विजिट पे हम लोग गए थे वहीं पे, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें हम लोग को नई चीज़ें पता चली, जैसे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की हुई थी यहाँ पे, और कैसे सिर्फ पहले 600 एकर्स में आप लोगों ने काम शुरू किया था इन्होंने, और आज के टाइम पे 210 फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा यहाँ पे काम किया है, कितनी ज़्यादा मेहनत से ये चीज़ों को आप लोगों ने किया है कि आज के टाइम पे चेंजेस आए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फिर वहाँ पे साथ में जैसे आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप लोग काम करते हैं, जैसे कि और तो आगे आए वो अपनी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट करें, जैसे उनकी नॉर्मल जो निजी आमदनी होती है उससे उनको मिले, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। और यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो पिया आपने अभी इधर, हमने 3 ग्लास पिया। हमने 3 ग्लास पिया, पर हमको वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा।